Hello student. So in this particular video we are going to see how to accept input from user. As far as accepting input from user is concerned, there are two ways which are commonly used in Java through which we can accept the input from the user. The first thing is called as using buffered reader class and the second one is using a scanner class. So basically this particular video we are going to see how to accept input using buffered reader class. बफर्ड रीडर क्लास की खास बात यह है कि अगर मैं बफर्ड रीडर क्लास को यूज करके यूजर से इनपुट एक्सेप्ट करना चाहता हूं, बफर्ड रीडर कैन नॉट डायरेक्टली इंटरैक्ट विथ योर सिस्टम. इसके लिए सिस्टम से इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए आपको सबसे पहले इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास यूज करना पड़ेगा. तो इनपुट स्ट्रीम रीडर इज अ क्लास विच इज यूज टू एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द सिस्टम एंड फिर इनपुट स्ट्रीम रीडर से इनपुट एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको बफर्ड रीडर के अंदर. सो आई जस्ट मीन टू से इफ यू आर गोइंग टू यूज अ बफर्ड रीडर क्लास, आपको टोटल दो क्लास यूज करने पड़ेंगे. इनपुट स्ट्रीम रीडर जो सिस्टम से इनपुट एक्सेप्ट करेगा एंड बफर रीडर जो इनपुट स्ट्रीम रीडर से बाद में इनपुट एक्सेप्ट करेगा. टू इलैबोरेट दिस, लेट्स सी वन सिंपल एग्जांपल ऑफ बफर्ड रीडर क्लास. Buffered reader class, input stream reader class, IO exception class, these are the three classes which are present in a package java.io. So basically if I want to use a buffered reader class, I need to import java.io package. Okay, we all know the name of the class can be anything. तो इधर मेरे particular class का नाम है example1. There is a main method, right? Main method के सामने मैंने लिखा है throws IO exception. Because when I'm using buffer reader class, it throws one exception which is called as IO exception. By the way friends, what is the exception? Why I need to write throws IO exception? All this part we are going to see in later part of our syllabus inside the exception handling chapter. So for time being, let's consider that if I'm going to use buffer reader class on or in front of main method, I need to write throws IO exception, which indicates my main method is capable of handling the IO exception. So main method throws IO exception. Like I said, input stream reader class is used to accept the input from the system. That's why I need to write input stream reader R. The name of the object is R. The name of the object can be anything, is equal to new input stream reader bracket system.in. So basically system.in से जो भी इनपुट आएगा वो आपके R करके ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेप्ट किया जाएगा. देन R के अंदर जो भी इनपुट रहेगा वो बफर्ड रीडर के ऑब्जेक्ट के अंदर आके स्टोर हो जाएगा. अगेन आई मस्ट से द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग. तो हियर आई रोट बफर्ड रीडर BR. I kept the name of the object as BR is equal to new buffered reader, but it accept from input stream reader का object, right? And input stream reader object name is R. So in bracket I need to write R. So these two statements are used to accept the input from the user. So basically system के through user जो भी input देगा वो R के अंदर पहले accept होगा and बाद में R से वो input मेरे buffer reader के BR करके object के अंदर आ जाएगा. Now I can accept input from user. So in this example, first I display a message, enter string. Message पढ़ के user string enter करेगा. User जो भी string enter करेगा, we all know वो string मेरे buffered reader के object के अंदर आएगा BR. But I want that string inside string S1. तो अगर buffered reader से मुझे string retrieve करना है, so there are two methods, read and readline. तो इधर मैंने यूज किया readline method. It is used to accept a string फ्रॉम बफर रीडर. तो बफर रीडर से जो भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा वो मेरे S1 के अंदर आके स्टोर हो जाएगा. देन बाकी कुछ नहीं, मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को यूज करके स्ट्रिंग इज इक्वल टू S1 करके स्ट्रिंग को डिस्प्ले कर दिया. सो दैट इज हाउ वी कैन डिस्प्ले एंड एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग यूजिंग बफर रीडर. नेक्स्ट लेट्स सी हाउ टू एक्सेप्ट इनपुट यूजिंग बफर रीडर. तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यूजर को मैसेज दिया एंटर इंटीजर. बफर रीडर के थ्रू मैं जो भी एक्सेप्ट करता हूं वो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में एक्सेप्ट होता है. तो भले इधर यूजर इंटीजर एंटर करेगा वो एक्सेप्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग. तो br.readline उसको एक्सेप्ट करेगा, लेकिन मुझे तो उसको स्ट्रिंग में नहीं इंटीजर में स्टोर करना है.
इसके अंदर जो भी रहेगा, जो फिलहाल मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूं, इसके अंदर जो भी रहेगा वो तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहेगा, बट मुझे तो इंटीजर में स्टोर करना है। तो इधर मुझे मेरे स्ट्रिंग को इंटीजर में स्टोर करने के लिए पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे एक रैपर क्लास मेथड यूज करना पड़ता है, इंटीजर डॉट पार्सिंट। तो दैट पार्सिंट मेथड फ्रॉम इंटीजर क्लास इज यूज्ड टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग इनटू इंटीजर। तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके मैंने n1 के अंदर स्टोर कर दिया, एंड फाइनली मैंने फिर n1 को एज ए इंटीजर डिस्प्ले कर दिया। द सेम रूल इज एप्लीकेबल टू डबल ऑल्सो। मुझे यूजर से एक डबल वैल्यू एक्सेप्ट करना है, उसके लिए मैंने यूजर को मैसेज दिया एंटर डबल। बंदा जो भी डबल वैल्यू एंटर करेगा, पहले तो हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे एज अ स्ट्रिंग यूजिंग रीडलाइन मेथड, राइट? लेकिन उसको तो मुझे स्ट्रिंग में नहीं, डबल में स्टोर करना है। तो कहने से इसके अंदर जो भी स्ट्रिंग है उसको मुझे डबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर डॉट पार्सिंट करके मेथड है, स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट करके मेथड है। सिमिलरली स्ट्रिंग को डबल में कन्वर्ट करने के लिए डबल डॉट पार्स डबल करके मेथड है। तो हियर यू कैन सी मैंने डबल डॉट पार्स डबल ये रैपर क्लास का मेथड यूज किया है, जो मेरे स्ट्रिंग को डबल में कन्वर्ट करेगा, और इसको मैंने d1 करके डबल वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। वी ऑल नो द नेम ऑफ द वेरिएबल कैन बी एनीथिंग। फाइनली मैंने मेरे पर्टिकुलर वेरिएबल को एज अ d1 करके डिस्प्ले कर दिया। एट द एंड लेट्स सी हाउ टू एक्सेप्ट अ सिंगल कैरेक्टर। अगेन मैंने यूजर के सामने एक मैसेज एंटर किया, एंटर सिंगल कैरेक्टर। यूजर कैरेक्टर एंटर करेगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल यूजर ने कैरेक्टर एंटर किया ए, लेकिन आपको तो पता है बफर रीडर के थ्रू मैं सिर्फ स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर सकता हूं। तो br डॉट रीड लाइन ये जो स्टेटमेंट है, वी ऑल नो वो ए को एक्सेप्ट करेगा एज अ स्ट्रिंग, लेकिन जब ए एज अ स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा, ए बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग के 0th लोकेशन पे आ जाएगा। तो इट्स लाइक वो एज अ स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा, लेकिन जो आपका कैरेक्टर है वो 0th इंडेक्स पे रहेगा। अभी आपको तो पता है मुझे पूरे स्ट्रिंग में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे वो पर्टिकुलर कैरेक्टर में इंटरेस्ट है। इसके लिए वो जो स्ट्रिंग है उसके 0th पोजीशन का मुझे कैरेक्टर चाहिए। तो उसके लिए स्ट्रिंग का एक मेथड है कैर एट ब्रैकेट में 0। तो कैर एट ब्रैकेट में 0 वो स्ट्रिंग के 0th इंडेक्स का मुझे कैरेक्टर देगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर ए था तो ये 0th इंडेक्स पे रहेगा, राइट? तो ये मुझे 0th इंडेक्स का कैरेक्टर देगा, जिसको मैंने स्टोर किया कैर C1 के अंदर। कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए वी हैव कैर वेरिएबल, राइट? एंड फाइनली मैंने कैरेक्टर इज इक्वल टू C1 करके मैंने उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को भी डिस्प्ले कर दिया। सो आई होप दिस एग्जाम्पल इज वेरी मच क्लियर। ऑफ कोर्स इधर मेरा मेन मेथड खत्म, इधर मेरा पर्टिकुलर क्लास खत्म। ओके, तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको पता चल गया हाउ टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग, how to accept integer, how to accept double, how to accept single character. Can you try how to accept a single float value from the user using buffer reader class? And can you, with this example, can you guess what are the problems which are there while using a buffer reader class? Fine. Okay, इस particular example को और clear करने के लिए चलो इसका आउटपुट देखते हैं। The name of the class is example1 and it is there in the folder programs। तो programs करके मेरा फोल्डर है, इन दैट आप देख सकते हो example1.java फाइल है मेरा। Let's compile that file. Okay, the cursor is point to the programs folder only. Let's compile the file। उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा javac example1.java, right? When I press enter, अच्छा it doesn't have any error, तो उसने मुझे कोई एरर नहीं दिया। Now I can execute the code। उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा java example1। Okay, but it asking me the string, enter string, right? For example मैंने string enter किया स्वप्निल, that is my name। When I press enter, चलो string is equal to स्वप्निल आ गया। Now it asking me the integer। आपको तो पता है मैं जो भी इंटीजर एंटर करूंगा, मैंने एंटर किया 10, वो एक्सेप्ट होगा एज अ स्ट्रिंग, लेकिन इंटीजर डॉट पार्सेंट उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। एंड बाद में जब मैं डिस्प्ले करूंगा मुझे मैसेज मिलेगा इंटीजर इज इक्वल टू 10। इज आस्किंग मी एंटर डबल वैल्यू। सपोज मैंने डबल वैल्यू एंटर किया 3.14। अगेन वी ऑल नो वो पहले एक्सेप्ट होगा एज अ स्ट्रिंग,
एंड बाद में उसको हम लोग डबल में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग डबल डॉट पार्स डबल, एंड डबल वैल्यू में स्टोर करके जब मैं उस वैल्यू को डिस्प्ले करूंगा आई विल गेट डबल इज इक्वल टू 3.14. एंटर सिंगल कैरेक्टर, सपोज मैंने सिंगल कैरेक्टर एंटर किया एस, तो पहले वो एज अ स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा, लेकिन वो जो एस रहेगा वो 0th इंडेक्स पे रहेगा, यू रिमेंबर ना. एंड बाद में कैरेट ब्रैकेट में 0 वो एस को रिट्राइव करके सिंगल कैरेक्टर के अंदर स्टोर करेगा. इसके लिए जब मैं डिस्प्ले करूंगा मुझे कैरेक्टर इज इक्वल टू एस करके मिल जाएगा. So that is how we can use a buffered reader class to accept various input. So again my question is that with this example, can you guess what are the different problems of using a buffered reader class? And second thing, can you tell me how to accept a single float value from the user using buffered reader class?